ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विथ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको जो मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ वो ये मैं रिकॉर्डेड पार्ट भी आपको सप्लाई कर पाऊँ। So here in the books of Shashwat and Shiv, both are equal partner. So profit sharing ratio is 1:1. I'm writing here 1:1. So what is the speciality that when all partners are insolvent? इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ ऐसा होगा ये सिचुएशन में that we are not able to get sufficient amount from the assets realized. जब मैंने assets realize किया तो I will not be able to get sufficient amount to pay off all the liability. जरूर पैसा शॉर्ट पड़ेगा, और जब ये पैसा शॉर्ट पड़ा एंड वी आस्क्ड फ्रॉम द पार्टनर्स दैट प्लीज ब्रिंग सम मनी, अगेन द पार्टनर्स सेड सॉरी वी डू नॉट हैव मनी, वी आर हैविंग इनसफिशिएंट फंड। व्हेन एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, माइंड यू इंसॉल्वेंसी कब क्रिएट होता है? व्हेन ऑल एसेट्स आर बीइंग रियलाइज्ड, liabilities are paid either to full extent or part extent, and when partners are supposed to bring money from home and they refuse, at that point of time they are called as an insolvent partner. If they refuse to bring money from home to contribute in the partnership business, they are called insolvent partner. When all partners are insolvent, तब क्या होता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं, right? So we are starting with question number 25 in our textbook, Shashwat and Shiv. So I'm starting with the transfer of every item from the given balance sheet part. मैं liability से start करता हूँ। शाश्वत कैपिटल 6000, तो चलो मैं इसे जूम कर लेता हूं अभी। गो टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शाश्वत का बैलेंस है 6000। क्रेडिटर, फॉर क्रेडिटर वी हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट लेजर। चेक करो, हमने एक सेपरेट लेजर बनाया है। क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस 39,000। verify 39,000. So liability side is over. We go on the asset side. Check, do you have any cash bank balance? Yes, we do have 3,000. So go on the cash book, debit side 3,000 to balance brought down. All assets have debit balance. All assets have debit balance. Shiv's capital 12,000. तो पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, डेबिट साइड पे जाओ, शिव की कॉलम में 12,000 to balance brought down. Please verify. To balance brought down. All remaining assets transfer to realization account, debit side at book value to sundry assets. Sundry assets. चलो, plant and machinery 14,750. Furniture 4,000. Debtors 5,000. At book value, stock 6250. स्टॉक 6250। चेक करो, मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लिए हैं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, शिव कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, ऑल रिमेनिंग एसेट्स रियलाइजेशन डेबिट एट बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 1 का इंटेंशन है मेरा पूरा बैलेंस शीट खाली हो जाना चाहिए। आई डू नॉट वांट एनीथिंग इन द बैलेंस शीट, इट शुड बी ट्रांसफर्ड समवेयर और द अदर, दैट्स द इंटेंशन। Due to weak financial position, all partners were declared bankrupt. The assets were realized as below. तो बच्चों, जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं ना,
तो हमारा इंटेंशन होता है कि जितना अमाउंट गैदर कर सकते हैं पहले गैदर कर लो. चेक, डू यू हैव सफिशिएंट अमाउंट सो दैट यू कैन पे टू द लायबिलिटी होल्डर. चेक करो. वो डेफिनेटली नहीं होगा, तभी तो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं. when that is insufficient, right, you ask the partners, can you bring something from your home? Whatever partners can bring, take it and pay to the liability holder. The amount which we cannot pay to the liability holder, transfer it to deficiency account. अभी आगे देखेंगे होगा, right? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, let us try to realize as much as assets possible. जितना हो सकता है पैसा बटोरो. So we are told stock, furniture, debtors and machinery so and so realized. My journal entry should be, we have to go with entry base. एंट्री पहले दिमाग में आना चाहिए, बाद में इफेक्ट आना चाहिए. बाकी कई जगह पे बच्चों को सिखाया जाता है सिर्फ सीधा इफेक्ट. हमें इफेक्ट नहीं समझना है. इफेक्ट ऑटोमेटिकली आएगा. पहले दिमाग में एंट्री, बाद में इफेक्ट. कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश बैंक डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट. $3,500 stock, 2,000 furniture, 5,000 debtors, 7,000 machinery. चलो टोटल करो और मुझे चैट में बताओ कितना आया. 17,500. करेक्ट है. करेक्ट है. So my entry should be cash bank account debit 17,500 to realization account 17,500. बच्चों ये क्वेश्चन कैटेगरी ऐसा है कि जिसमें आप डायरेक्टली यू नो वॉट एवर अमाउंट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द पार्टनर वो एंट्री पहले भी कर सकते हो. जितना पैसा मिल सकता है ले लो. देखो नीचे क्या लिखा हुआ है. कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बाद में करते हैं. शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेप्ट, whereas Shiv's private estate there is a surplus of 500. इसका मतलब क्या है? देखो, partners liability is joint and several. I told you in the last lecture also. It is joint and several. अगर फॉर्म में पैसे की जरूरत है तो उनको घर के एसेट्स, पर्सनल एसेट बेच के भी पैसा लाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेवरल. एंड जॉइंट का मतलब ये है कि पार्टनर, एक पार्टनर की गलती के वजह से भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो दूसरे पार्टनर को लाना पड़ेगा टू सपोर्ट द अदर पार्टनर बिकॉज दे आर इन द पार्टनरशिप फॉर्म. इट इज जॉइंट एंड सेवरल, राइट. तो यहां पे बोला हुआ है दैट शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू इवन पे हिज प्राइवेट डेप्ट. मतलब प्राइवेट माने उसके घर का जो भी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी होता है. शाश्वत का तो पर्सनल लायबिलिटी पे करने का भी पैसा नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं ला सकता. इन शॉर्ट एंड डायरेक्टली, शाश्वत कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग. उसके अपने पर्सनल लायबिलिटी पे करने का भी पैसा नहीं है. लेकिन शिव का प्राइवेट एस्टेट में सरप्लस आया है, मतलब उसका पर्सनल लायबिलिटी पे करने के बाद भी 500 रुपया बचा है. इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि शिव 500 रुपया लेके आ सकता है, ऐसा आपको बताया है. तो बटोर लो, गैदर कर लो. माई एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कौन लेके आया? शिव कैपिटल अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट. कैश बैंक में डेबिट हो गया, शिव में क्रेडिट जाएगा. कितना लाया? 500 रुपया लाया. चेक करो. जितना भी पैसा आ सकता था अभी आ गया, और कभी कुछ पैसा आने वाला नहीं है, राइट. अब मैं आगे देखूंगा. चेक करो. कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू 1,500. इन शॉर्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500 है. तो माय जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन पे जाओ, लिखो टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस. कितना खर्चा हुआ? 1500. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक.
टू कैश बैंक। चेक करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 1500। चेक करो, सारे एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर लिए। स्टॉक एंड अदर एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, शाश्वत कुछ नहीं ला पाया, शिव जो लाया वो मैंने कलेक्ट कर लिया। अब बच्चों आप देखो जरा कैश बैंक अकाउंट को देखो, कैश बैंक अकाउंट प्लीज चेक करो। कैश बैंक में आपके पास में कितना पैसा बचता है? आई थिंक डेबिट साइड में 17,521,000 मेरे हिसाब से टोटल होता है। देखो ये से 21,000, 19,500 बचेगा। 1500 रुपया गया तो 19,500 बच जाएगा। इतना पैसा मेरे पास 19,500। एंड आपके पास में क्रेडिटर कितना है? 39,000 का क्रेडिटर है। मतलब आपको लायबिलिटी पे करना है 39, लेकिन आपके पास में टोटल मिला के पैसा कितना है? 19,500। उससे ज्यादा पैसा नहीं है। पार्टनर्स भी पैसा नहीं ला सकते हैं, इतना ही पैसा है आपके पास। तो जितना भी पैसा है वो पूरा लायबिलिटी को पे कर दो, राइट? सो माय जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 19,500 टू कैश और बैंक अकाउंट। चेक करो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 19,500। वेरीफाई करो। मैं इतना ही पे कर सकता हूं और पैसा ही नहीं है हमारे पास, ना ही पार्टनर ला पाएंगे। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लोज क्रेडिटर्स अकाउंट ऑल्सो। $39,000 जो भी बैलेंस बच गया ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट 19,500। यस, जो भी पैसा बच गया ट्रांसफर इट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? डेफिशिएंसी अकाउंट का मतलब क्या है? व्हाट इज अ शॉर्टफॉल? डेफिशिएंसी रिफर्स टू द शॉर्टफॉल। व्हाट इज अ शॉर्टफॉल विच यू कैनॉट पे? अब थोड़ा कंसेप्चुअली समझो। हाँ, आपके लेवल पे ये थोड़ा हायर लेवल पे जा रहा हूं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लायबिलिटी है क्रेडिटर। जब मैं लायबिलिटी को पे नहीं करता हूं, इफ लायबिलिटी आई कैनॉट पे indirectly, if I am not paying to the liability and I don't have to pay to the liability, indirectly that is my profit. Indirectly, actually it is not your profit. आप तो actually insolvent हो गए हैं, आप तो नादार हो गए हैं, right? Actually आपका वो profit नहीं है, but when I don't have to pay to the liability, indirectly it is your profit, and profit goes on credit side of the nominal account. तो ये deficiency के credit में जाएगा 19,500। मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है यहाँ पे, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा 19,500 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। लॉजिक समझने की कोशिश करना। डेफिशिएंसी अकाउंट इज लाइक अ नॉमिनल अकाउंट, इसमें प्रॉफिट या लॉस आता है। ओके, इन अ वे क्रेडिटर्स को मैंने पे नहीं किया, ऐसा समझने का प्रॉफिट हुआ, एक्चुअली नहीं हुआ है प्रॉफिट, समझने का प्रॉफिट हुआ, तो डेफिशिएंसी में क्रेडिट में जाएगा। और जब मैं पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करूंगा तब मुझे अमाउंट नहीं मिल पाएगा, दैट डेबिट बैलेंस दे विल नॉट बी एबल टू गेट मी, दैट आई विल ट्रांसफर, दैट इज लाइक माय लॉस, दैट आई विल ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी डेबिट एंड अल्टीमेटली डेफिशिएंसी अकाउंट विल गेट टैलिड। अभी देखेंगे। अब एक काम करो, आप लोग रियलाइजेशन को बंद करो। चलो, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड डेफिनेटली उसमें आपको लॉस मिलने वाला है। चलो भाई, डेबिट साइड हैवी है, देखो चेक करो। आई थिंक 30,000 है टोटल। 14,000 का लॉस है सर। डेबिट टोटल बोलने का पहले 31,500। डेबिट 31,500।
31,500 minus your 17,500 कितना आया? 3,000. 14,000. 14,000. 14,000 you must be getting. दो पार्टनर है, इक्वल रेशियो 1 2 3 4 बाय 7,000. realization loss transferred शाश्वत and Shiv 1:1, that is 7,000 each. चेक करो. देखो मैंने बोला था कि जनरली 99.99% ऐसा होगा कि इसमें लॉस ही आएगा, पक्का लॉस आएगा. क्यों ऐसा पता चला? क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है. इंसॉल्वेंट कब होते हैं? जरूर आपके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ रहेगा एंड यू आर नॉट एबल टू सफिशिएंटली रिकवर द एसेट्स. बुक वैल्यू भी रिकवर नहीं हो रहा है, तभी तो लॉस आएगा. तो इसलिए मेरा बुक वैल्यू से कम रियलाइजेशन हुआ, इसलिए रियलाइजेशन लॉस आया है. This loss I will share and transfer to partners capital 7,000 each. To realization account. Into bracket you got to write loss. सर आपने शाश्वत का कैपिटल क्यों नहीं लिखा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे? शाश्वत का कैपिटल डेबिट में नहीं है. बैलेंस शीट चेक करो ऋषभ, क्रेडिट बैलेंस है. शिव का डेबिट बैलेंस है. शिव का डेबिट बैलेंस 12,000 है. ओके, ये वन नोट में ऑटो डिलीट हुआ रहेगा. शाश्वत का क्रेडिट बैलेंस है एंड दैट इज 6,000. चेक करो, राइट? ओके, अभी आप लोग कैपिटल अकाउंट को बंद करो. क्लोज कैपिटल अकाउंट. चलो 1,000 का लॉस. जब पूछा जाता है तभी आंसर दीजिए. 17 7 + 12 19,000. अब ये एक चीज समझने की कोशिश करो ध्यान से. हाँ, इतना लिख लो और जो मैं बोलने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो सारे बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ये जो बैलेंस आया ना, उसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस. हाँ, जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से समझो. डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स व्हाट? मीन्स दिस इज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टनर्स. Receivable from the partners. Firm has to receive amount from the partners. We asked, but they do not have the amount. So it is like our loss. ये हमारा एक प्रकार का loss है, and hence this loss will be transferred to nominal account, which is deficiency account. जब मैंने liability को पे नहीं किया था तब मैंने बताया था it is like profit. अब पार्टनर के पास से पैसा मिलना है लेकिन वो नहीं मिल रहा है. इट इज लाइक लॉस एंड हेंस दिस आई विल ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट. दीप वेट करो. डेफिशिएंसी अकाउंट में 1,000 and 18,000 आई विल ट्रांसफर. and to Shiv capital account. and आप ऑब्जर्व करोगे कि डेफिशिएंसी अकाउंट गेट्स टैलेड. इसका मतलब ऐसा है, मैं जूम आउट करके दिखाता हूं, वेट करो. इसका मतलब ऐसा है कि जो मैं लायबिलिटी को पे नहीं कर पाया, एक प्रकार का प्रॉफिट हुआ. एक्चुअल आपको प्रॉफिट नहीं है, आपका तो फर्म पूरा बंद हो गया है. ऑल पार्टनर्स हैव गॉट इंसॉल्वेंट. एक प्रकार का प्रॉफिट है. एंड द अमाउंट विच यू कुड नॉट गैदर फ्रॉम द पार्टनर्स, दैट इज लाइक योर लॉस. यू पुट इट ऑन द डेबिट साइड. So loss and profit gets equalized in this ledger. It gets tallied. Once deficiency account is getting tallied, means your solution is correct. That way we have to understand. ये देखो मैं पूरा क्वेश्चन जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करो.
राइट फ्रॉम द रियलाइजेशन लॉस आपको सारा पार्ट दिख रहा होगा, वेरीफाई करो, check this and then we will discuss with your doubt if any.